Hello students, myself Dr. Narendra Singh, Associate Professor in Physics, Department of Basic Science, Oriental College of Technology, Bhopal. Today we will discuss here interference and the Newton's ring. तो सबसे पहले we will discuss here what is this interference. Interference क्या होता है? So interference is nothing but it is the superimposition of your two or more than two waves. Means when two waves meet to each other, then the resultant phenomena is known as your interference. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? That is known as your interference. Okay. So there are two types of interference pattern after the superimposition of your two waves, two or more than two waves. One is known as your constructive interference and other one is known as your destructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कब मिलता है? मीन्स वी विल गेट द ब्राइट पैटर्न, और डिस्ट्रक्टिव मतलब वी विल गेट द डार्क पैटर्न. तो इस केस में अगर हम इस फिगर में देखेंगे देन व्हाट विल हैपन इफ द ट्रफ ऑफ बोथ द वेव्स सुपर इम्पोजिंग वेव्स, दैट इज योर फर्स्ट वेव एंड अदर वन इज योर सेकंड वेव. उसी तरह से when the trough of both the waves and the crest of the both the waves just meet to each other, then the resultant is your कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. उस केस में हमें क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. उसी तरह से अगर एक का ट्रफ और दूसरे का क्रेस्ट, जैसे दिस वन, एक का ट्रफ और दूसरे का क्रेस्ट, ये क्रेस्ट एंड दिस वन इज ट्रफ, then meet to each other, superimpose to each other, then automatically we will in the resultant we will get the destructive interference, means we will get the dark fringes. Now the conditions for the sustained interference. The first condition is the sources must be coherent in nature. The second coherency means the both the sources having same frequency or the same wavelength. The second one is the amplitude of the interfering wave must be equal. दोनों का amplitude क्या होना चाहिए? Equal. The third one is the direction of the interfering wave must be same. मतलब they will travel in the same line. And then the next one is the separation between the sources is small as small possible, means sources must be narrow in nature. Now the Newton's ring. So here we will discuss the what are the Newton's ring, how the Newton's rings are formed, and what are the conditions for bright and dark rings, and lastly we will discuss the application of this Newton's ring experiment. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? वी हैव द लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. ये एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? बहुत ज़्यादा है, बिगर है. इट विल प्लेस्ड ऑन ए प्लेन ग्लास स्लैब. ये हमने एक प्लेन ग्लास स्लैब के ऊपर रखा. देन व्हाट विल हैपन, इन दोनों ग्लासेस के बीच में वी हैव द एयर फिल्म. अगर हम देखेंगे एक सिमेट्रिकल एयर फिल्म इज एनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू ग्लासेस. If a monochromatic source of light from this source such as your sodium is allowed to incident on this film, इसके ऊपर अगर फिल्म के ऊपर इंसिडेंट करेंगे then automatically we will get here, हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे? we will get the Newton's ring of concentric Newton's rings of increasing in radii. These rings are circular in nature. The first question is how the Newton's rings are formed, कि Newton's ring बनते कैसे हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे then what will happen, यहाँ दो ग्लास हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरे हमारे पास क्या है? बट वी हैव द प्लेन ग्लास है. इन दोनों के बीच में एक ग्लास फिल्म एनक्लोज होगी. अगर इस ग्लास फिल्म की बात करें तो एक इसका टॉप हुआ और दूसरा इसका क्या है? बॉटम. देन व्हाट विल हैपन, the ray when the light is incident on this film, then what will happen? One ray is reflect from the top of this film and other ray is reflect from the bottom of this film. Then what will happen? Both the rays just travel in the same direction. When they superimpose to each other we will get the dot. हमें यहाँ पे डॉट मिलेंगे. इसी तरह से बहुत सारे जब डॉट मिलेंगे, when you collect the locus of these dots then we will automatically we will get the alternate bright and dark rings of increase in radii which are known as your Newton's ring. ये क्या है हमारे पास है? ये क्या बन जाएंगे अपने पास है? Newton rings. तो Newton rings are formed due to the superimposition of the light which is reflected from top and bottom of your air film. The second question is the Newton's ring are circular
as I have told that they are circular, concentric and increase in radii because of your symmetrical thickness of the air film around the point of contact. Now here we will determine the conditions for bright rings as well as your conditions for dark rings. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें वी हैव टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज विच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टॉप एज वेल एज योर बॉटम ऑफ एयर फिल्म। यहाँ दोनों के बीच में हमने सबसे पहले क्या निकालना है, हमने पाथ डिफरेंस निकालना है। तो इन केस ऑफ थिन फिल्म हमने ये किया था, इन केस ऑफ थिन फिल्म विच इज रिफ्लेक्ट द टू रेज विच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टॉप एज वेल एज योर बॉटम ऑफ एयर फिल्म, द पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस टू रे इज गिवन एज, इन दो रेज के बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, दैट विल बी इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाय 2। Here mu is nothing, it is your refractive index of the medium, or r is nothing, that is your angle of refraction, and theta is nothing, it is the angle of batch। तो हमें करना क्या है कि ये इस पाथ डिफरेंस को न्यूटन्स रिंग के केस में अप्लाई करना है। तो इन दिस केस द वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज योर कितना, दैट इज योर 0। क्यों 0 होगा, बिकॉज ऑफ योर परपेंडिकुलर इंसिडेंट ऑफ अ रे। तो हमारे पास क्या जाएगा, कॉस ऑफ आर प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 1, और म्यू इज इक्वल टू 1। म्यू हमने क्यों बन लिया, बिकॉज ऑफ एयर फिल्म, किसकी वजह से ले लिया हमने, एयर फिल्म की वजह से ले लिया। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2t माइनस लैम्डा बाई 2, 2t माइनस लैम्डा बाई 2। और सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज योर 0, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, that is your equal to lambda, delta is equal to lambda by 2, और that's why the center will be your, ये क्या होगा, it is your center is your dark। now the condition for bright rings, हमें मालूम है कि we will get the bright rings या bright interference pattern when the path difference is equal to m lambda, where m is equal to 0, 1, 2, 3 and so on। हियर इन दिस केस अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इफेक्टिव पाथ डिफरेंस कितना है, 2t माइनस लैम्डा बाई 2। तो हमारे पास कितना जाएगा, दैट जो 2t माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू m लैम्डा, और जब हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2t इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। सिमिलरली कंडीशन फॉर मिनिमा और द डार्क रिंग्स, तो उस केस में 2t माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, तो 2t इज इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू m लैम्डा। नाउ अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है इस फिगर से। नाउ इस फिगर को जब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी इंटू दैट जो ए बी इज इक्वल टू ओ ए इंटू ए एफ। जब हम यहाँ से वैल्यू डालेंगे देन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टी इंटू 2r माइनस टी, और दैट मल्टीप्लाई करेंगे 2rt माइनस टी स्क्वायर। हियर टी इज नथिंग, दैट इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म, r इज नथिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, एंड स्मॉल r इज नथिंग, दैट इज द रेडियस ऑफ न्यूटन्स रिंग। तो फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ 2t दैट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r। और जब इसको वहाँ पे हम इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमारे पास जो ब्राइट रिंग है उसके इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटू 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा आर, क्योंकि ये डी एम इज नथिंग, दैट इज योर डायमीटर ऑफ mth ब्राइट रिंग। और तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो डी एम विल बी इक्वल टू के इंटू रूट 2m माइनस 1। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स इज proportional to the square root of your odd natural number, this is nothing, that is your odd natural number। सिमिलरली फॉर डार्क रिंग के केस में हमारे पास क्या जाएगा, डी एम स्क्वायर इज इक्वल 4m लैम्डा आर, तो डी एम किसके बराबर जाएगा, के इंटू रूट एन। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। So there are two applications of your Newton's ring. First one is your measurement of your wavelength, and other one is your determination of refractive index of your refractive index। तो इस केस में जब हम ये करेंगे कि how will determine the wavelength of the light used, तो इस we know that d n square is equal to 4n r lambda for your dark ring। डायमीटर nth डार्क रिंग का, उसी तरह से n प्लस पी और डार्क रिंग का किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू एन प्लस पी इंटू लैम्डा आर। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम